Okay. Before solving these questions, first we will explain what are these terms. Look here. First, proper fractions. Before solving these questions, you must know what is the meaning of these terms. Look here, proper fractions. What are proper fractions? Proper fractions are those fractions in which numerator is less than the denominator. Numerator is less than the denominator. Okay. For example, look here. For example, 3 upon 7, 5 upon 9, 6 upon 11, etc. Look carefully these examples. Here you can see 3 upon 7. Numerator is less than the denominator. In second example, 5 upon 9. Okay? 5 is also less than 9. In third example, 6 upon 11. 6 is also less than 11. In all these three examples, numerator is less than the denominator. If always learn numerator is less than denominator. Numerator is less than denominator. If any fraction follow this, numerator is less than denominator, then we can say that is a proper fraction. Okay? Now, next, improper fraction. Improper fraction. Improper fractions are those fractions in which numerator is greater than the denominator. Numerator is greater than the denominator. First, look the example for understanding. Look the examples. 19 upon 5, 37 upon 10, 15 upon 2, etc. Look carefully these examples. 19 upon 5. Numerator is greater than the denominator. Numerator is greater than the denominator. Look, second example, 37 is also greater than 10. 15 is also greater than 2. If any examples look like this, then you can say that is the improper fraction. So always, first you have to clear what are the terms, what are the meanings of these terms. Then you will solve the question, then you can understand better. Okay? So proper fraction and improper. If you understand these terms, then you have to write yes, I understand in message box. Okay? I am waiting. So just write yes, sir. If you are not understand, then you can write no. Okay? अगर बेटा आपको समझ में आ गया है तो आप मैसेज में यस लिख दो तो फिर हम आगे बताएंगे मारिस यस मारिस आपको समझ में आ गया वेरी गुड एंड दरअक्सा यू कैन आल्सो राइट इन मैसेज बॉक्स अगर समझ में आ गया है तो आप यस लिखिए अगर नहीं समझ में आया तो नो लिखिए मैं अगेन आई विल रिपीट ओके वेरी गुड नाइस दोनों को समझ में आ गया अच्छा proper fraction improper fraction. Now I will explain mixed fraction. Okay. Okay. Just wait. Okay. Okay. Look here. Mixed fraction. Mixed fraction.
Mixed fraction is the combination of whole number and proper fraction. Mixed fraction are the combination of whole number and proper fraction. Look example, then you can understand variance. Okay. Oh, Darksha, I think you didn't understand proper fraction. You said it. Okay, no problem. Again, I repeat it. Okay. Proper fraction, look again. Proper fractions are those fractions in which numerator is less than the denominator. अच्छा दरअक्षा आपको फ्रैक्शन तो पता है ना? Do you know fraction? 1 minute you had written network issue. Okay. Okay, listen carefully. If you have any network issue, you can see videos after over the class. Okay. तो अगर नेटवर्क इशू है आपका तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है और मैंने रिकॉर्डिंग में इसको लगा दिया है तो आप उसका रिकॉर्डिंग को आप देख सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है तो ओके आप रिकॉर्डिंग फिर से आप एक बार देख लेना आपको समझ में आ जाएगा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिलहाल अभी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन देखते हैं ठीक है मिक्स्ड फ्रैक्शन लुक हियर फर्स्ट एग्जांपल 5 3/7 2 1/2 9 3/9 2/5 etc. These type of fractions are called mixed. Look very carefully. 5 1/8. Look very carefully. 5 1/8. 5 1/8 is a mixed fraction. Why? What is the reason? Here you can say that 5 is a whole number. 5 is a whole number. And 1/8, 1/8 is a proper fraction. This means mixed fractions are made up of combination of whole number and proper fraction. Whole number and proper. तो आप इसको याद रखिए जो मिक्स्ड नंबर मिक्स्ड फ्रैक्शंस होते हैं वो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे आपने देखा ना 5 क्या है सोचो ये 5 होल नंबर है 1/8 1/8 क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन अभी हमने बताया न्यूमरेटर अगर छोटा है डिनोमिनेटर अगर बड़ा है तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप याद रखो द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शंस आर कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन समझ में आ गया तो आप मैसेज बॉक्स में यस लिखिए अगर नहीं समझ में आया है तो आप नो लिखिए आई विल अगेन रिपीट listen again if you understand the mixed fractions then you can write in message box yes otherwise no then I will solve this okay if you are any problem if you are facing any problem you can see video recording okay nice now हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें
तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते, क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करें। Here you can see express as mixed with fractions. Look carefully. Express as mixed fraction 98 upon 11, 200 upon 15. You have to convert these fractions into mixed fractions. आपको कन्वर्ट करना है इस फ्रैक्शंस को मिक्स में। मतलब यहाँ पे 98 upon 11। आप लोग एक चीज तुरंत बताओ विद इन सेकेंड्स, 98 upon 11 कौन सा फ्रैक्शन है? मैसेज में लिख के बताओ। 98 upon 11 is which type of fraction? Just write in message box. देखते हैं सबसे पहले कौन लिखता है। Which type of fraction is 98 upon 11? Just write in the message box. Okay, किसी ने लिखा है? देखते हैं सबसे पहले कौन लिखता है। Mavis, very good, nice. Improper fraction. Okay, very good. तो यहाँ पे ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 98 upon 11 क्या इम्प्रॉपर, और इसको हमको कन्वर्ट करना है मिक्स में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? ध्यान से देखो, इसको हम डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 11 is a 58, तो ये 8 होल नंबर हो जाएगा 10 upon 11। ये देखो मिक्स में करना, ठीक है। तो जब भी आपको कन्वर्ट करना है मिक्स में, तो आप सिंपली क्या करोगे? इस 11 से 98 को डिवाइड करो, 11 से 98 को डिवाइड करो। यहाँ पे जो परसेंट आएगा वो आपका होल नंबर हो गया, और रिमाइंडर ऊपर लिखो 11, तो 8 10 upon 11। इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो मिक्स में, ठीक। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। Look, question number 2 express as a proper fractions. यहाँ पे आप ध्यान से देखो 3, 5 और 7 मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो यू हैव टू कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको किसमें कन्वर्ट करना है? इम्प्रॉपर, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहाँ पे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें 7 into 3, फिर जो भी न्यूमरेटर है उसको ऐड 7 3 जा 21 plus 5, ये हो गया 26, ठीक है। 26 upon 7 दैट इज इम्प्रॉपर। तो जब भी मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना, तो आप सबसे पहले 7 का मल्टीप्लाई कीजिए, 7 3 जा 21, और ऊपर जो भी न्यूमरेटर है उसको आप ऐड करें। 21 में 5 प्लस 2 26, तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके बेटा, एक क्वेश्चन आपको और बता देते हैं, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 is 7 and 12। इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? लाइक। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर 7, यहाँ पे देखो लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं? 7। आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है, लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर क्या होते हैं। तो हमको यहाँ पे लाइक में कन्वर्ट करना है, इसके डिनोमिनेटर को 7।
उससे उसके लिए सबसे पहले 12 और 20 का हम क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम। एलसीएम आपको निकालने आता है, हम बार बार नहीं बताएंगे। यहाँ पे एलसीएम ऑफ 12 एंड 20, ठीक है। तो इसका एलसीएम होगा 6। एलसीएम आप निकाल लेना, एलसीएम कितना आ गया 60। अब यहाँ पर हमको 60 लाना है, क्या लाना है 60। तो तो 12 के टेबल में 60 कितनी बार आता है 5 बार, 5 से मल्टीप्लाई। 20 के टेबल में 60 कितनी बार में आता है 3 बार, 3 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ 7 5 या 35, 5 3 या 18, ये आंसर। तो ध्यान से देखो बेटा, अगर आपको कभी भी लाइफ में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपको जो डिनोमिनेटर्स हैं, डिनोमिनेटर्स को आपको एलसीएम फाइंड करना है। जैसे हमने 12 और 20 का एलसीएम फाइंड किया, जो भी एलसीएम आता है उसको हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल लाना है। जैसे यहाँ पे देखो 60 आया है, तो यहाँ पर 60 हमको लाना है। तो 12 के टेबल में 60 कितनी बार में आता है 5, तो 5 से ऊपर नीचे नहीं। 20 के टेबल में 60 कितनी बार में आता है 3 बार में, तो 3 से हम मल्टीप्लाई है ना। 7 5 या 35, 5 3 या, ये देखो डिनोमिनेटर बराबर हो गए, तो ये लाइक फ्रैक्शन निकल। ठीक है बेटा, भावेश समझ में आ गया बेटा। ओके, ये होमवर्क है, भावेश समझ में आ गया बेटा। अगर समझ में आ गया तो कुछ बोलो। ओके, वेरी गुड बेटा, समझ में आ गया, वेरी गुड। तो क्लास को एंड करते हैं। आप बेटा पेयर कॉपी में एक्सरसाइज 2.1 होमवर्क कर ले। तो ये आपका है होमवर्क, एक्सरसाइज 2.1। ओके बेटा, क्लास को एंड करते हैं। आप घर पे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर सकती है, व्हाट्सएप पे कोई भी क्वेश्चन आप शेयर कर सकती है, हम उसको एनी टाइम। ओके बेटा, बाय।